Hello and welcome to all. So this is the lecture number 6 on impact of Z, and today we are going to discuss what will be the force exerted by the Z on a moving unsymmetrical curved plate. When the Z it will hit the plate in the tangential direction. So इसका एक case we have already discussed in the lecture number 5. So this was the first case that we have discussed where Z it was hitting the plate at the center of the van. ठीक है, Z कहाँ पे हिट कर रहा था? सेंटर ऑफ द प्लेट. उस कंडीशन को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 5. And in the 2D discussion we will find what will be the force exerted by the Z when it will strike a unsymmetrical moving curved van in the tangential direction. So यहाँ पे क्या था? It was hitting at the center of the van, but here it will hit in the tangential direction of the tip. ठीक है, so this is the case number 2. So let's start. So for that we will use few symbols. That is the capital V क्या है हमारा? It is the absolute velocity of the Z, capital V, and a small u. This is the first symbol that we will use, capital V, and the small u, it is the peripheral, not peripheral, it is the velocity of the van, not peripheral. This is velocity of the van. ये जो van है इसकी जो velocity है, it is small u. we are using to represent the relative velocity. R means relative and the capital V means velocity. So velocity कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को VR से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो उसका सिंबल ये है VF. ये टर्म्स अभी यहाँ पे आएंगे सब, वेलोसिटी ऑफ फ्लो. देन वी हैव अ VW, वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल, और वी कॉल द व्हिर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी के कितने सिंबल आ गए? V, एक तो V आया, that is the absolute velocity of Z, then VR relative velocity, VF and VW. ठीक है, theta and phi, these are the two angles that represents theta, it represents the tip angle at the inlet, and the phi same tip angle but at the outlet of the van. ठीक है, सो थीटा एंड फाई दीज आर नथिंग बट दीज आर दी वी कॉल्ड एज अ ब्लेड एंगल. वी कॉल्ड, हम इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं, दीज आर दी ब्लेड एंगल. ये जो वैन है, ये जो बना हुआ है, इसका जो एंगल है उसको हम ब्लेड एंगल बोलते हैं, और टिप एंगल एट द इनलेट एंड द टिप एंगल एट द आउटलेट, थीटा एंड फाई. Similarly, alpha and beta, these are the two pair of angles. This is the angle of absolute velocity. ठीक है, this is the angle of absolute velocity at inlet. तो उसको हम alpha से represent करेंगे, and the same absolute velocity if we are looking at the outlet, so the angle will be beta. So alpha and beta, these are the pair of angles. किसके angles है? किसके angle है? absolute velocity के है. फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट इनलेट वो एंगल अल्फा है, आउटलेट पे एंगल बीटा है. सो अगर यहाँ पे V1 लिख दूँ मैं, V1, सो दैट मीन्स वी आर लुकिंग एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ Z एट इनलेट ऑफ द वैन. V2 का मतलब है सेम एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एग्जिट. सिमिलरली U1, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वैन एट इनलेट. U2, that means at the exit. Similarly VR1 and VR2, these are the relative velocity of Z at inlet and outlet. Similarly VF1 and VF2,
It is the flow component of velocity, 1 for inlet and 2 for outlet or 2 for exit. Simply VW1 and VW2. ठीक है, सो ये सिंबल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. कैपिटल V याद रखना है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, स्मॉल u वेलोसिटी ऑफ द वैन, दिस आर द रिलेटिव वेलोसिटी. इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम फ्लो कंपोनेंट एंड व्हिर्ल कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट अस, यहाँ पे एक वैन ऑलरेडी दिखाया हुआ है. लेट दिस इज योर कर्व्ड वैन एंड लेट दिस वैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी एंड इट इज स्मॉल u. ठीक है, सो ये जो वेट प्लेट है, कर्व्ड प्लेट है, ये इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी स्मॉल u. सो लेट अस लुक कि हम यहाँ पे z कहाँ पे हिट करेगा. सो एट द इनलेट, सो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हिट करेगा. सो इफ़ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या होगा. अगर ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी ये इस तरह से गया. सो लेट मी ड्रॉ, इफ़ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, ये इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया. सो z विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट. सो z मेरा इधर कहीं रखा होगा. ये इस तरह से z जो होगा इस ब्लेड को टेंजेंशियल डायरेक्शन में हिट करेगा. सो लेट अस लुक कैसा दिखेगा. सो ठीक है, सो लेट यहाँ कहीं पे वी हैव अ नोजल, वी हैव प्लेस समवेयर हियर, वी हैव अ नोजल एंड this is the absolute velocity of the z and it will be v1. ये जो velocity है, this where ये प्लेट किधर मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u. मेरा नोजल जो है वो यहाँ पे है, दिस इज समवेयर वी हैव प्लेस्ड अ नोजल, और इस नोजल से जो जेट आ रहा है उसकी वेलोसिटी लेट वी आर कॉलिंग एज अ v1 विच इज़ डायरेक्टेड इन द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है उसकी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है. सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग दिस इज हिटिंग टेंजेंशियली एट द टिप. सो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ z एट इनलेट. देन वी हैव अ, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ z. लेट दिस इज u. ठीक है, वी कॉल दिस इज u1 बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एट द इनलेट, सो दिस इज योर u1. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द वैन. सो z जो होगा इट विल हिट दिस पॉइंट विथ सम रिलेटिव वेलोसिटी. यहाँ पे क्या है, सिंस ब्लेड इज मूविंग, एक तो ये कंडीशन है, और वैन इज मूविंग, सो बिकॉज ऑफ दैट वी विल लुक और वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी कैलकुलेशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, सो जो भी कैलकुलेशन हमारा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वैन, जो यहाँ पे ये u है, ये u शो किया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड. सो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. लेट दिस इज योर VR1. ठीक है, दिस इज योर VR1. ठीक है, कैसे लिखा VR1 में क्या लिखूंगा. सो आई विल राइट VR1. VR1 का मतलब क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू वैन. दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू वैन. तो ये कैसे लिखेंगे, सो ये बेसिकली लिखा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ z माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन, ये लिखा हुआ है v माइनस u. किसकी वेलोसिटी लिखनी है, z की, तो z की वेलोसिटी में से वी विल सब्सट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द वैन. सो v माइनस u, इट इज, ये क्या है, दिस इज योर VR1. बट इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, सो आई विल राइट VR1 वेक्टर VR1, इट इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर v1 माइनस वेक्टर u.
and if you are writing at the inlet, so it will be v1 and u1. तो relative velocity क्या है? This is the relative velocity of z. So if I reverse the direction of, इसमें क्या हुआ है, v1 में से क्या किया है, माइनस u1. दैट मीन्स इफ आई रिवर्स दिस डायरेक्शन, u1 को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड द v1 ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स vr1. वेक्टर u1 प्लस वेक्टर v1, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर का एडिशन होके वी आर गेटिंग वेक्टर vr1. ठीक है, तो vr1 क्या है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ z, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू वैन. सो दिस इज माई v1, दिस इज माई u1. ठीक है, लेट मी ड्रॉ द एंगल. सो अभी अल्फा क्या है, दिस इज द अल्फा, यहाँ पे वी कैन शो अल्फा इज द एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी. सो v1 का जो एंगल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वी कॉल दिस इज अल्फा सॉरी, v1 का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये मेरा अल्फा है. लेट अस कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द इन न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में हम इसको यूज़ करेंगे. सो v1 समझ में आया, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ z, ये जो ब्राउन है ये आपका क्या है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वैन, दिस इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी जिससे ये z एंट्री लेगा. एक्चुअल में ये कितनी वेलोसिटी से एंट्री लेगा, इट विल एंटर विथ वेलोसिटी vr1. देन इट विल फ्लो, ये इस तरह से इसकी प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ यहाँ से एग्जिट होगा. एट दिस पॉइंट इट विल लीव द वैन. सो व्हेन इट विल लीव, तो वेलोसिटी क्या होगी, जितनी vr1 से एंट्री लिया है, सो ऑब्वियसली इट विल लीव विथ वेलोसिटी vr2. ब्लेड की इनलेट वेलोसिटी क्या होगी, इनलेट वेलोसिटी, सो दैट विल बी vr1. vr1 से ये एंट्री लेगा, न कि v1 से लेगा. v1 से तब लेगा व्हेन इट इज स्टेशनरी. when it is moving, so in that case we will take the relative velocity and it will leave the van with velocity vr2. so this is vr2. जो वेलोसिटी यहाँ पे है वैन की, वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी एट दिस पॉइंट. सो दिस विल बी माई u2. ठीक है, vr2 से एग्जिट होगा and this will be your velocity of the van. so I can represent what will be the absolute velocity of z. so this will be v2. ठीक है, v2. लेट्स कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. सो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल वी कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ट्राइंगल, वेलोसिटी ट्राइंगल at inlet, and this is the velocity triangle at exit. अल्फा यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल अल्फा है. सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल है v2 का एंगल, सो दैट विल बी योर बीटा. ठीक है, सो दिस विल बी योर, दिस एंगल योर बीटा, अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा एंगल है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का इनलेट पे. सो v1 का एंगल जो है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हुआ अल्फा. सिमिलरली v2 का एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना हुआ, दिस बिकम्स योर बीटा. थीटा एंड फाई, सो थीटा एंड फाई दीज आर दी टिप एंगल. सो कितने एंगल से वो कितने एंगल पे एंट्री हो रहा है, सो vr1 का जो एंगल है वी कॉल दिस इज थीटा, इनलेट पे थीटा, एंड vr2 का जो एंगल है वी कॉल दिस एंगल एज फाई. ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा, these are the angle of absolute velocity from horizontal. theta and phi, these are the angle of vr1. you can take this relative velocity का एंगल theta और phi है. ठीक है, सो v1 u1 vr1, सिमिलरली v2, ये v2 आया, दिस इज u2 एंड vr2.
रिमेंबर VR1 से एंट्री लेगा और VR2 से एग्जिट होगा. सो VR2 से जब एग्जिट होगा सो वी विल ऐड दिस वेलोसिटी. इसको ऐड करने पे वी गेट दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेड, और वी कैन राइट दी VR2 इट इज़ नथिंग बट V2 माइनस U2. ये करके भी हमको VR2 मिल जाएगा. सो V2 ये है ही, दिस इज योर V2. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ U2, तो U2 की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा. एंड एडिशन ऑफ दीज टू वी गेट दी VR2. सेम वे से वी कैन फाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल. सो डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये डायरेक्शन इधर ही क्यों शो किया हुआ है. सो VR1 से एंट्री लेगा, VR2 से एग्जिट होगा. U1 एंड U2 दीज आर इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में U1 और U2 है. अल्फा एंड बीटा दीज आर द एंगल्स ऑफ एब्सोल्यूट velocity of z. थीटा एंड फाई दीज आर दी ब्लेड एंगल्स. सो ये इसको हम बोलते हैं दिस इज योर वेलोसिटी ट्रायंगल. दिस इज वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट. सो अगर आपको ये ट्रायंगल समझ में आ गया सो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम. रिमेंबर दिस triangles are drawn in a plane. These are in a plane. ये plane के अंदर में ही है. If you are looking in the vertical plane, so all are in vertical plane. And if you are looking the horizontal plane, so ये triangle, ये वाला triangle जो है और ये वाला जो triangle है, हाँ ये जो triangle draw किया हुआ है, this particular triangle and this particular triangle, they are lying in the plane. ये भी प्लेन में है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो दीज आर दी और प्लेनर वेलोसिटी बिकॉज दीज आर दी वेक्टर्स. सो ये वेक्टर और ये वेक्टर दे आर लाइंग ऑन दी सेम प्लेन. ठीक है. सो अब हमें क्या फाइंड करना है. सो वी वांट टू फाइंड व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड. हमको फाइंड करना है व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेड. सो उसके लिए क्या फाइंड करेंगे. सो अगेन वी विल यूज सेम कॉन्सेप्ट. हमको फोर्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे. वी विल राइट एफ एक्स विल बी m डॉट एंड आई विल राइट Vx1 माइनस Vx2. ये कहाँ से लिखा. फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ से लिखा है. फोर्स एक्सर्टेड बाई z कितना होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो f रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखा है m डॉट Vx1 एंड Vx2. सो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट द एग्जिट, बट इट शुड बी इन x डायरेक्शन. सो Vx1 एंड Vx2 प्लेस करके इफ यू मल्टीप्लाई m डॉट सो वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द z इन x डायरेक्शन. अब उसके लिए हमको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. सो व्हाट विल बी दी Vx1. Vx1 कितना होगा. सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द नेमिंग ऑफ दिस ट्रायंगल. लेट दिस इज A, लेट दिस इज B, लेट दिस पॉइंट इज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज D. लेट दिस इज E, इसको E बोल देते हैं. लेट ये F आ गया, ये G आ गया और ये H आ गया. ठीक है. सो रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से जो एंटर हो रहा है, जिस वेलोसिटी से एंटर हो वो क्या है VR1. वो वेलोसिटी क्या है VR1. सो VR1 को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो CD विल बी इट्स कंपोनेंट विच इज along the U and this is the component which is perpendicular to the U. मैं VR1 को रिजॉल्व कर सकता हूँ और उसका एक कंपोनेंट किधर आएगा x की डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट किधर आएगा y की डायरेक्शन में आएगा. सिमिलरली VR2 को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट x की डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट y के डायरेक्शन में आएगा. बट बिफोर दैट लेट फर्स्ट देखते हैं कि ये दोनों क्या है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द वेलोसिटी ऑफ व्हिर्ल. सो एज यहाँ पे देखो कैपिटल V लिखा हुआ है. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल V. ये किसके कंपोनेंट है कैपिटल V के कंपोनेंट है. सो अगर मैं कैपिटल V को रिजॉल्व करूँ, इस ग्रीन लाइन को रिजॉल्व करूँ, तो ये जो पूरी लाइन है, लेट मी चेंज द कलर. सो दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट यहाँ से दैट मीन्स A to D. वी कॉल दिस इज V and W1.
ये जो V1 का जो कंपोनेंट है दैट इज AD को हम बोलते हैं VW1। सिमिलरली V2 का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा फ्रॉम G to H। V2 का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट विल बी योर VW2। सो V1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसको हम वेरल कंपोनेंट बोलेंगे। सो VW1 इट इज द वेरल कंपोनेंट एट इनलेट, VW2 वेरल कंपोनेंट एट एग्जिट। सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, सो V1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इफ यू लुक इन द ट्रायंगल ABD, सो दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड वी कॉल दिस इज अ VF1। अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल पे देखें ये इस तरह से, ये मेरा क्या है, दिस इज V1, तो इसका एक कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा VW1 एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट बिकम्स VF1। सो VF1 दिस इज द फ्लो कंपोनेंट एट द इनलेट। सिमिलरली यहाँ पे अगर रिजॉल्व करेंगे सो H2 ये वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा VF2। सो फ्लो कंपोनेंट एट इनलेट VF1 एंड फ्लो कंपोनेंट एट एग्जिट। ठीक है, तो ये किसके कंपोनेंट है, ये बेसिकली कैपिटल V के कंपोनेंट है। V के दो कंपोनेंट आ गए, कौन कौन से आए, VW एंड VF। VW दिस इज योर वेरल कंपोनेंट एंड VF इट इज योर फ्लो कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। सो लेट्स फाइंड, तो यहाँ पे एक बार फिर से नेमिंग कर देते हैं। लेट सेम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ, लेट दिस इज A, ये A था, ये B C D E F G and H। ऑलराइट, लेट अल्फा बीटा क्या था, सो लेट दिस इज अल्फा, इसको मैंने बोला V1, दिस इज V1 एंड इट्स एंगल वाज अल्फा। ये मेरा था U1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन लाइन ये क्या हो जाएगी ब्लू, दिस इज V2 एंड दिस इज U2। ठीक है, देन ये इसको हमने बोला VR1, रिलेटिव वेलोसिटी से एंटर होगा एंड इट विल लीव फ्रॉम VR2। सो दीज आर द टू रिलेटिव एंगल्स। ये इसका एंगल क्या था, दिस वाज द इनलेट एंगल, इसको हमने थीटा बोला, और एग्जिट पे एंगल ये मेरा फाई, ये अल्फा है, अल्फा के साथ पे वी आर यूजिंग बीटा, सो ये एंगल आ गया बीटा। एंड ये क्या था, दिस इज योर V2। ठीक है, तो ये सिंबल्स हो गया V1 U1 VR1 अल्फा एंड थीटा, VR2 U2 V2 फाई एंड बीटा। सो लेट्स राइट what will be, let us first write what will be the mass flow rate। so mass flow rate कितना हो जाएगा, mass flow rate m डॉट कितना हो जाएगा, so अगर यहाँ पे इनलेट पे देख रहे हैं सो इट विल बी रो A एंड VR1। मास फ्लो रेट कितना होगा, रो AV एंड द वेलोसिटी इनलेट पे वेलोसिटी क्या है VR1। सो रो इंटू A इंटू VR1। हमको फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड बाई Z इन द डायरेक्शन ऑफ Z, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट Fx। सो Fx विल बी m डॉट Vx1 minus Vx2। so in this particular equation m dot we have already calculated, rho A VR1, let us write what will be Vx1। so Vx1 कितना होगा यहाँ पे, so Vx1 is nothing but it is the component of velocity। so VR1 का जो component है ये this is CD, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा Vx1। सो लेट मी राइट हियर Vx1 कितना है,
Vx1 जितनी वेलोसिटी से इंटर हो रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से इंटर हो रहा है, Vr1 से, सो इट्स component in x direction, that is CD is my Vx1, और I can write what will be CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, so CD can be written as Vr1 into cos थीटा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट आ गया, Vr1 का ये कंपोनेंट कितना हो गया, दिस विल बी Vr1 cos थीटा C2D, ठीक है। एंड व्हाट विल बी Vr1 cos थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, CD कैन बी रिटन एज A2D माइनस A2C, दिस CD कैन बी रिटन एज A2D, ये टोटल लेंथ है A2D, एंड व्हाट इज A2D है मेरा VW1, U1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज VW1 एंड द वर्टिकल कंपोनेंट VF1। उसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट G2H इट इज VW2 और H2E VF2, ठीक है। AD कितना है, सो AD इज VW1, सो VW1 माइनस A2C कितना है, U1, दैट मीन्स Vx1 जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या है, Vr1 cos थीटा, एंड इट इज नथिंग बट इट इज VW1 माइनस U1, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से इंटर हो रहा है, Vr1 से, तो इसका वो कंपोनेंट चाहिए जो x की डायरेक्शन में हो, सो वो कंपोनेंट कौन सा है, C2D और Vr1 cos phi, सो C2D कैन बी रिटन एज A2D माइनस AC, सो A2D VW1 माइनस U1। सिमिलरली Vx2, सो Vx2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, Vx2 क्या लिखेंगे, Vx2, सो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, सो इट इज लिविंग विथ वेलोसिटी Vr2, यहाँ से इंटर कितने से हुआ, Vr1, सो इट विल लीव विथ Vr2, और इसका x की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, सो इट विल बी F2H। Vr2 अगर राइट एंगल ये पूरा ट्रायंगल देखे तो ये इस तरह से है, ये एंगल है Vr2 एंड ये है फाई, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया टोटल, Vr2 cos phi, सो G2H कितना हो गया, दिस इज Vr2 इंटू cos phi, इसको क्या लिख सकते हैं Vr2 cos phi को, आई कैन राइट दिस इज F2G प्लस G2H, मैं F2H को टोटल लेंथ को आई कैन राइट दिस इज दिस U2 एंड प्लस सॉरी F2G प्लस G2H, मैंने क्या किया FH को FH कैन बी रिटेन एज F2G प्लस G2H, ठीक है। एंड F2G इट इज योर U2 प्लस G2H क्या है, दिस इज योर VW2, सो फाइनली Vx1 कितना आया, सो Vx1 इज VW1 माइनस U1 एंड U2 प्लस VW2, ये क्या आया तुम्हारा, ये Vx2 आया, बट रिमेंबर यहाँ पे एक और Vr2 दिस डायरेक्शन हैज बीन रिवर्स, सो हियर वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज पहले इधर जा रहा था अभी ये इधर हो गया, डायरेक्शन हैज बीन रिवर्स, सो बिकॉज ऑफ द रिवर्स इन द डायरेक्शन, सो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन, सो इट विल बी माइनस U2 प्लस VW2, सो ये Vx1 आ गया और ये हो गया Vx2। नाउ प्लेस दीज वैल्यूज, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, सो यू गेट दी Fx, सो Fx आ गया मेरा m डॉट
Vx1. So Vx1 is Vw1 minus U1 minus Vx2. So माइनस यहाँ पे माइनस फिर है, सो इट इज माइनस U2 प्लस Vw2. ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं. सो Fx, so Fx is m dot, let's open the bracket, so Vw1 minus U1 माइनस माइनस ये क्या हो गया, इट बिकम्स प्लस, सो दिस इज प्लस U2 प्लस Vw2. ठीक है, ये माइनस और ये माइनस बिकम्स पॉजिटिव, सो U2 प्लस Vw2. नाउ इफ in this particular case, what is happening in this particular, U1 is equal to U2, we have assumed, but they are moving with velocity u, so U1 and U2, it is basically u. So this ye term this will be cancelled out, so fx will come out m dot, and it is Vw1 plus Vw2. Or in short form I can write this is Fx is m dot, and it is nothing but it is Vw. So the summation of whirled component at the inlet and outlet, where Vw, ये क्या है मेरा V, so Vw is Vw1 and plus Vw2. So एक फॉर्मूला निकल के आया. So what is that? So force exerted by the z in x direction, it is nothing but it is the m dot, and this is the, and what is this? This is the whirl component of velocity. This is the whirl component of velocity. Vw को जो ये combined term था Vw1 and Vw2, in a composite form it is written as a Vw, or you can remember this also. So ये तो first formula है, this is the force exerted by the z in x direction. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है. और ये वेलोसिटी ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन दिस इज ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, बिकॉज इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा थीटा फाई, वो बेसिकली इसी ट्रायंगल को सॉल्व करके फाइंड करना है. सो दिस इज V1 U1 VR1, और VR1 का जो कंपोनेंट है दिस इज VR1 cos फाई, इट्स एग्जिट कंपोनेंट VR2 cos फाई, दैट इज बिकम्स Vx1 एंड Vx2. Vx1 की वैल्यू ये निकाली, Vx2 की वैल्यू ये निकाली, यहाँ पे रख के वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय z इन x डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर कैलकुलेट करना है, सो आई कैन राइट व्हाट विल बी फोर्स एक्सर्टेड बाय z इन वाई डायरेक्शन. सो Fy विल बी m डॉट and Vy1 minus Vy2, Vy1 minus Vy2. सो इसका जो कंपोनेंट है दिस इज VR1, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, ये हो गया, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट रहा, दिस इज योर x की डायरेक्शन में, ये y की डायरेक्शन, और इसको हमने क्या बोला था, दिस इज माई Vf1. ये क्या था, दिस वाज द फ्लो कंपोनेंट Vf1. इसका जो एक कंपोनेंट है VR1 का जो कंपोनेंट है, ये क्या है, इट इज BD, and BD is nothing but it is your Vf1. so Vf1 सिमिलरली यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव का ये कंपोनेंट, वर्टिकल इसका कंपोनेंट ये आएगा, and we call this as a Vf2, and both are in same direction. so Vy1 ये क्या है, this is Vf1, and Vy2 this is Vf2. so I can write Fy, so Fy will be m dot Vy1, so Vf1 minus Vf2. so this is the force exerted by z in y direction.
तो ये वाई डायरेक्शन का फोर्स है। वर्क डन फाइंड करना है, सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दी जेड। सो वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे, सो वर्क डन विल बी फोर्स exerted by z in x direction into the velocity of van। कितना फोर्स लग रहा है x की डायरेक्शन में, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वैन। सो एफ एक्स वी हैव कैलकुलेटेड, सो एफ एक्स कितना आया था, m डॉट वी डब्ल्यू and multiply u, so this will be work done। so m dot u and vw, so this will be the work done and it is in per second। so remember this is the work done per second। what will be its unit, क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड। so this is the work done by the z। ये इसका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, m dot u vw, and what is vw, so where vw it is the whirl component at inlet plus outlet। so vw1 और vw2 का समेशन वो है vw। so force m dot vw and work done m dot u vw, joule per second। now remember this is in joule per second। नेक्स्ट एफिशिएंसी अगर फाइंड करना है, सो हाउ टू राइट द एफिशिएंसी ऑफ जेड। सो एफिशिएंसी ऑफ जेड के लिए क्या करना पड़ेगा, सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ जेड। सो एफिशिएंसी ऑफ जेड विल बी वर्क डन बाय द जेड पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय, सो आउटपुट किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ द वर्क, एंड इनपुट इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड पर सेकेंड। इनपुट क्या है, सो इनपुट है हमारा काइनेटिक एनर्जी जो हमने जेड को दे रखी है। जो ये जेड है इट इज हिटिंग दिस प्लेट विद वेलोसिटी v1। सो ये वेलोसिटी v1 किसने दी है, हमने प्रोवाइड की है, बिकॉज ये तभी तो ये इसको हिट कर रहा है। सो v1 इसकी वजह से जो एनर्जी है इस फ्लूइड के पास, वो एनर्जी क्या होगा हमारा, दैट विल बी आवर इनपुट। सो ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट लिखा हुआ है। एंड वर्क डन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। सो वर्क डन पर सेकेंड कितना आया था, सो वर्क डन पर सेकेंड वो आया था m डॉट u v w। ये वर्क डन आ गया। लेट अस कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, कितना हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड, सो वो कितना हो जाएगा, हाफ m डॉट एंड वेलोसिटी इट इज v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर। हमने जेड को कितनी वेलोसिटी दी है, v1, उसमें उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो m डॉट हाफ m v1 स्क्वायर, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा। सो एफिशिएंसी ऑफ जेड कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी m डॉट u vw, दिस इज वर्क डन बाय द जेड पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी m dot v1 square। m dot will be cancel out, so it will be twice of the u vw divided by v1 square, twice of the u। so efficiency का फॉर्मूला आ गया, eta is equal to twice of the u vw and divided by v1 square। तो ये efficiency का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। सो दीज आर दी पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो ये एफिशिएंसी का अगेन एक बार देख लो, वर्क डन डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ द m v स्क्वायर एंड द वेलोसिटी ऑफ जेड v1 डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट दी। नाउ यहाँ से वी कैन सी इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ m डॉट यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी mass flow rate of the Z।
किसके इस पे डिपेंड कर रहा है, u, vw एंड v1, और यहाँ पे vw अगेन दिस इज vw1 प्लस vw2। सो ये वेरल कंपोनेंट का समेशन है। वेरल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो v का कंपोनेंट है वो मेरा क्या होगा, vw1। सो ठीक है, सो अगर मैं समराइज करूँ, देखो इफ सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय z, सो ये क्या आया, fx क्या आया, सो m डॉट vw, फोर्स एक्सर्टेड बाई कितना आया, m डॉट एंड vw क्या हो सकता है, सो इट इज द समेशन ऑफ vw1 प्लस vw2। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, सो प्लस एंड माइनस हियर वी हैव पुट because this value will depend on the value of theta and phi कैसा है, so vw1 plus and minus vw2। वर्क डन पर सेकेंड, सो वर्क डन पर सेकेंड कैसे निकलेगा, सो fx मल्टीप्लाई u, सो fx में u का मल्टीप्लाई कर दो, fx मल्टीप्लाई u, so that will be your work done per second। so m dot u vw1 plus and minus vw2। but suppose if someone asks work done per second per unit weight, work done per second and per unit weight, so he is asking, ये तो कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन पर सेकेंड क्या है, दिस इज योर एफ एक्स इंटू यू, और इसको डिवाइड कर देंगे पर यूनिट वेट, दैट इज एम जी से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, क्या करना है, पर यूनिट वेट का मतलब है प्रीवियस इक्वेशन जो आया हुआ है वो इसका था, वर्क डन पर सेकेंड, सो वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एम जी। सो वर्क डन पर सेकेंड कितना था, एम डॉट यू वी डब्ल्यू एंड डिवाइडेड बाई एम डॉट जी, ये डिवाइड करके वी गेट दी वर्क डन पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट वेट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ये इस तरह से आ गया, एम डॉट कैंसिल हो जाएंगे, वी डब्ल्यू एंड डिवाइडेड बाई जी। एंड देन सपोज अगर पर यूनिट मास पूछा हुआ है रादर देन पर यूनिट वेट, सो क्या करेंगे, वर्क डन पर सेकेंड कितना है, सो वर्क डन पर सेकेंड एम यू वी डब्ल्यू एंड डिवाइडेड बाई मास से डिवाइड करेंगे, एम डॉट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पर यूनिट मास, सो पर यूनिट मास m से डिवाइड करो, m डॉट, सो m डॉट विल बी कैंसल आउट, सो v एंड u, सो vw into u and the efficiency, so work done divided by kinetic energy of z, और उसका इक्वेशन निकल के आया 2u vw divided by v1 square and vw again this is the summation of vw1 plus vw2 and vw1 vw2 these are your well component, well component। एक और रह गया, अगर एफ वाई पूछा हुआ है, सो व्हाट विल बी फोर्स इन वाई डायरेक्शन, सो दैट वाज द एम डॉट वी एफ वन माइनस वी एफ टू, ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, सो इम्पॉर्टेंट इज हाउ आप इस ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ करने आ गया सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये रहा ब्लेड, पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, V1, दिस इज V1, देन वी विल ऐड U1, ये U1 हो गया, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विल बी आवर VR1, ठीक है। पहले V1 उसमें क्या ऐड किया, U1, सो रिजल्टेंट बिकम्स VR1, VR1 से एंट्री लेगा, सो इट विल लीव विथ वेलोसिटी VR2, सो ये VR2 आ गया, एंड इफ यू ऐड U2 सो यू विल गेट V2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर V2। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, सो V1 का जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर VW1 एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स VF1।
सिमिलरली ये V2 का ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, V2 का ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, ओनली दिस वन, सो VW2, और ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स योर VF2। अल्फा, अल्फा क्या है, सो अल्फा V1 का एंगल है, सो V1 का एंगल अल्फा है, सो इसके साथ में बीटा आएगा, तो ये एंगल बीटा हो गया। VR1 का एंगल थीटा है एंड इट्स पेयर इज फाई, सो दिस एंगल फाई। सो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, सो योर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स।